السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ جلدی سے میرے نئے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلتے ہیں ناول کے بقیہ حصے کی طرف۔ اسے دائر سے یونی جانا تھا۔ نیند سے بوجھل اپنی آنکھوں کو مسلتے وہ بس سے یونی کے لیے نکلی۔ بس میں بیٹھے اونگنے لگی اور ایک سٹاپ آگے چلی گئی۔ وہاں اتر کر پیچھے بھاگتے ہوئے یونی چلی آئی۔ بھاگتے ہوئے یونی پر رکی اور فائل جمع کروانے کے لیے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھی۔ ہر ایک کو جلدی تھی اس کی اسائنمنٹ جمع ہو جائے۔ ایک دم سے وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ اس کی فائل کہاں تھی جو وہ گھر سے لے کر نکلی تھی؟ وہ اتنی افراتفری میں تھی کہ اس نے اپنے بال بھی ٹھیک سے برش نہیں کیے تھے، لیکن اسے یاد تھا کہ وہ موٹی فائل کو گھر سے لے کر نکلی تھی۔ پوری یونی اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہ کئی راتوں سے نہیں سوئی تھی۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے بن چکے تھے۔ سر ہلکا درد رہنے لگا تھا اور آنکھوں کی پتلیاں ایک چیز کو ذرا سی بھی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تھکنے لگتی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو گیا تھا۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے اس نے دور تک نظریں دوڑائی۔ فائل کہیں بھی نہیں تھی۔ آنکھوں کو مسلتے، سر کو تھامتے وہ ایک جگہ بیٹھ گئی اور سوچنے لگی فائل کے ساتھ کیا ہوا، وہ کہاں گئی۔ سادھنا کو فون کیا۔ اس نے اس کا کمرہ، پورا گھر دیکھ لیا، لیکن فائل نہیں ملی۔ حتیٰ کہ وہ گھر سے بس سٹاپ کے راستے تک بھی دیکھائی۔ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے۔ اسے لگنے لگا کہ اس کی تعلیم پر اس کی اپنی نحوست کا سایہ پڑ گیا ہے۔ وہ بیٹھے دکھیانوسی سی ہو گئی۔ آنکھوں کے آگے اس نے ہاتھ رکھ لیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ بہت دنوں بعد اس کا دھارے مارنے کو جی چاہ رہا تھا۔ اگر وہ جاب نہ کر رہی ہوتی تو اب تک اسائنمنٹ مکمل کر چکی ہوتی۔ زندگی اتنی مشکل ہو چکی تھی کہ اسے ٹھیک سے کھانا کھانے کا بھی وقت نہیں ملتا تھا۔ اسے ایسے زندگی کی ہدایت نہیں کی تھی، اس لیے بھی وہ توازن نہیں رکھ پا رہی تھی۔ دوسرا، اس میں ایک بری عادت تھی کہ وہ کام کو اگلے دن پر ٹالتی رہتی تھی۔ وہ اسائنمنٹ پر چند گھنٹے کام کرتی اور یہ سوچ کر کہ ڈیڈ لائن کے ختم ہونے میں ابھی دن ہیں، اگلے دن پر کام چھوڑ دیتی۔ یہ کرتے وہ ڈیڈ لائن کے آخری گھنٹوں تک آ گئی۔ اپنی سستی کو لے کر رونے لگی کہ وہ بھی باقی سب کی طرح دن رات ایک کر کے کسی بھی طرح کم سے کم 2 دن پہلے اپنی اسائنمنٹ جمع کروا دیتی تو افراتفری میں یہ سب نہ ہوتا۔ اٹھ کر اس نے اس راستے کو بھی دیکھ لیا تھا جس پر سے چل کر وہ آئی تھی۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے وہ آلیان کے اپارٹمنٹ گئی۔ کیا ہوا عمراہا؟ اس کی شکل دیکھتے ہی وہ حیران ہو گیا۔ میری اسائنمنٹ نہیں مل رہی، شاید بس میں بھول آئی ہوں۔ تم روتی رہی ہو؟ اس کے پھر سے آنسو نکل آئے۔ میں فیل ہو جاؤں گی۔ میں فیل ہونا نہیں چاہتی آلیان۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ کس نے کہا تم فیل ہو جاؤ گی؟ وہ آنسوؤں کے ریلے کو اپنی آنکھوں کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ یونیورسٹی کے پہلے دن ویلکم ویک پر دائم نے اس کو کیسے الفاظ میں ویلکم کیا تھا۔ دائم کا لیکچر سن کر اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مثالی کامیابی حاصل کرے گی، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ اس نے مثالی محنت نہیں کی تھی، اس نے کاہلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے اپنے آپ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس کی بری عادتیں اب تک اس کے ساتھ تھی۔ تم چھوٹی باتوں پر ایسے روتی کیوں ہو؟ یہ چھوٹی بات ہے۔ اس نے روتی ہوئی گلابی آنکھوں کو رگڑا۔ یونیورسٹی میں کہیں بھول گئی ہو اپنی فائل؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آواز رند رہی تھی، اس لیے وہ کم سے کم بولنا چاہتی تھی۔ آلیان اسے ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آیا اور سبزے پر لے کر بیٹھ گیا۔ تمہاری فائل مل جائے گی عمراہا، پر مجھے تمہارے رونے پر دکھ ہو رہا ہے۔ تم کتنی کم ہمت ہو۔ ہاں، میں بہت کم ہمت ہوں۔ میرے تم لوگوں جیسے مضبوط اعصاب نہیں ہیں، اور تمہیں فخر بھی ہے کہ تم ایسی ہو۔ میں یونیورسٹی آفس جا رہا ہوں، تم یہیں بیٹھو۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو وہ فائل مل گئی ہوگی تو اس نے آفس میں جمع کروا دی گئی ہوگی۔ کوئی اسٹوڈنٹ میرے ساتھ ایسی نیکی کیوں کرے گا بھلا؟
क्योंकि वो फाइल उसके किसी काम की नहीं होगी और उसकी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं होगी, कहकर आलियान चला गया। उसे यकीन था कि फाइल बस में रह गई है और भला ट्रांसपोर्ट में रह जाने वाली चीज़ें भी कभी किसी को मिली हैं। उसने धुआंधार आवाज़ किए बगैर दिल लगाकर रोना शुरू कर दिया। आलियान वापस आ चुका था और उसके सर पर खड़ा खामोशी से खड़ा उसे देख रहा था। मैं ट्रांसपोर्ट ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे यकीन है वहाँ से ज़रूर तुम्हें फाइल मिल जाएगी। इमराहा ने आलियान को ऐसे देखा जैसे कह रही हो, पागल हो ना तुम, अगर तुम बस में ही भूली हो ज़रूर मिल जाएगी, मेरा यकीन करो। वो क्यों मेरी फाइल संभाल कर रखेंगे? ये यूनिवर्सिटी बस है इमराहा, और ये शहर मैनचेस्टर जैसी खूबसूरत यूनिवर्सिटी रखता है। अक्सर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह अपनी बहुत सी चीज़ें सब वीज़ा, ट्राम और बसों में भूल जाते हैं। कैफ़े, रेस्टोरेंट और सिनेमा में भी उनकी चीज़ें उन तक पहुंच जाती हैं अक्सर। मैं नहीं मानती कि ऐसा होता होगा। हाँ, ऐसा तब नहीं होता जब हम उन चीज़ों को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। गुम हो जाने वाली चीज़ें हमेशा गुम ही रहती हैं जब तक उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की जाए। बुरा मत मानना, ये तुम्हारा कंट्री नहीं जहाँ तुम कुछ बस में भूल जाओ तो वो तुम्हें वापस ना मिले। तुम्हें इतने तनफ़्फ़ुर से मेरे मुल्क का जिक्र नहीं करना चाहिए। इमराहा ने फाइल के गुम होने का गुस्सा उस पर उतारा। मैंने तनफ़्फ़ुर से जिक्र नहीं किया, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मुझे नहीं जाननी कोई हकीकत। जो लोग तलख हकीकत जानने की कोशिश नहीं करते उनमें बदलने की अहलियत भी नहीं होती। ठीक है, सारी अहलियत तुम लोगों के पास ही है, हम सब नकारा ही हैं, रहने दो हमें नकारा ही। मैंने ऐसी बात नहीं की कि तुम ऐसे नाराज़ हो, तुम ऐसी बातें भी नहीं कर रहे कि मैं खुश हूँ। वो उठकर चली गई। वो दाइम के पास जा रही थी। मैं आधे घंटे में आता हूँ इमराहा, आलिया ने पीछे से आवाज़ दी। वो दाइम के पास आई। उसने उसे ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने के लिए कहा। जाहिर है दाइम तो जाने से रहा, उसे ही जाना था। इसमें तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि यूनिवर्सिटी के मेन गेट के पास चली जाती। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफिस से भी ना मिली, वो इस ख्याल को सोच कर ही दहल रही थी, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। थोड़ी देर बाद वो मेन गेट से बस स्टॉप की तरफ जा रही थी तो उसे आलियान की आवाज़ सुनाई दी। वो रुक कर उसे देखने लगी। वो तेजी से साइकिल चलाता उसके पास आ रहा था, बुरी तरह से हाँफ रहा था। ये लो, मिल गई। उसने फाइल उसके आगे की। फाइल को हाथ में लेकर भी इमराहा को जैसे यकीन नहीं आया। कहाँ से मिली? ट्रांसपोर्ट के ऑफिस से। अगली बार फाइल पर अपना नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस ज़रूर लिखना। अगर तुमने पहले से लिखा होता तो तुम्हें अब तक ये मिल गई होती। तेज साइकिल चलाने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था। इमराहा उसे देखने लगी। दाइम की तरह उसने उसे नहीं कहा था कि वो जाए और अपना काम खुद कर ले। वो गया और उसने उसका काम कर दिया। उसका शुक्रिया अदा करके वो फाइल जमा करवाने चली गई। उसने महसूस किया कि उसका अंदाज ठीक नहीं था आलियान से बात करने का। जब हम हारे हुए, दुखी या मायूस होते हैं तो हम अपने इतने बदमजाज क्यों हो जाते हैं? हमारा सारा इखलाक कहाँ रुखसत हो जाता है? हम इतने रोते हैं तो हम बाकी सब हंसते हुओं को रुलाना क्यों चाहते हैं? असाइनमेंट्स जमा करवाने के बाद इमराहा आलियान को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे नहीं मिला। वो जा चुका था। उसका काम हो गया तो उसे अपने रवैये पर अफसोस हुआ। उसकी फाइल ना मिलती तो वो ऐसे ही बद इखलाकी मुजाहिरा करती रहती। ये कमज़ोर असाब के मालिक होने की निशानी है और बिलाशुबा ये कोई अच्छी निशानी नहीं है। आलियान से मुलाकात होती है तुम्हारी? लेडी मेहर पूछ रही थी। सब आतिशदान के पास बैठे थे। वीरा उसे अपने साथ दी प्रिंट वर्क लेकर जा रही थी। वो तैयार बैठी थी। वीरा तो तैयार हो रही थी। जी होती है। दोस्त है तुम्हारा? सबसे अच्छा दोस्त है ना? मेरा बेटा बहुत अच्छा दोस्त बनता है ना? नहीं, वो तो कह रहा था कि तुम उसकी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। इमराहा सोचने लगी कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। तुम्हारे पापा कैसे हैं? उनकी शॉप सेट हो गई? जी, वो जल्दी आपका कर्ज वापस। बुद्धू हो, कर्ज की बात कौन कर रहा है? तुम्हें लगता है मैंने इसलिए तुम्हारे पापा का तुमसे पूछा है? मुझे लगता है मुझे खामोश हो जाना चाहिए। इमराहा शर्मिंदा सी होकर उन्हें देखने लगी। चैनल तब्दील करके उन्होंने चार्ली चैप्लिन की मूवी लगा ली और उसे देखने लगी। जैसे स्कूल से छुट्टी ना करवाए जाने पर बच्चे खफा होकर वालिदैन को देखते हैं। अगर आप ऐसे ही खफा रही तो मैं वीरा के साथ नहीं जाऊंगी। उन्होंने फूले मुंह से उसे नाराज़ी से देखा।
कभी कभी तुम हद से ज्यादा बेवकूफ़ी कर जाती हो। मैं हद से ज्यादा बेवकूफ़ हूँ, ये कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है। माँ और बेटा दोनों एक ही बात करते थे। जानती हूँ। मैं आ गई, वीरा ने निशिस्तगाह में आकर चला कर कहा, दरअसल खुद को दिखा कर कहा। उसने हल्की गुलाबी रंग की फ्रॉक पहनी थी, अपने लंबे बालों को टेल की सूरत बांधा था, हल्का मेकअप किया गया था और खुद को और प्यारा बना लिया था। इसे किसी क्लब न ले जाना, लेडी मेहर ने ताकीद की। मालूम है मुझे, वैसे भी ये क्लब मटेरियल नहीं है। वो तो तुम भी नहीं हो, सब ही जाते हैं, एक ये इमराह ही नहीं जाती है। वीरा किसी कदर चिढ़ गई थी। जाएगी भी नहीं, इसके बाप दादा की रवायात नहीं है। ये तो बुराई क्या है इसमें, मुझे इस बहस में नहीं पड़ना। वीरा तुम जाओ, फिल्म देखो और घर वापस आओ। अब वीरा का ये पहले से इरादा था या वो शरारत कर रही थी? उसे क्लब ले आई। उसने सिटी सेंटर में वाक़या दी प्रिंट वर्क को कई बार बाहर से देखा था, लेकिन कभी अंदर नहीं गई थी। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की पसंदीदा जगहों में से एक थी। यहाँ मुख्तलिफ कैफ़े, बार, क्लब, रेस्टोरेंट, जिम और अपनी तर्ज में यकता एक सिनेमा मौजूद था। वीरा इसी सिनेमा में उसे फिल्म दिखाने ला रही थी। दी प्रिंट वर्क एक छोटा सा डिजिटल शहर लगता, रंगारंग चहल पहल और मुख्तलिफ मुल्कों के अफराद की भीड़ से सजा संवरा। हमसे है जमाना का नारा लगाता हुआ अंदर जाते तो लगता कि बाहर कोई और दुनिया है ही नहीं। बाहर आते तो लगता दुनिया सारी अंदर थी। पहले वीरा उसे लेकर घूमती रही। ये जो दो गोरे सामने खड़े हैं, इन्हें देखकर बताओ ये किस कौमियत के हैं? वीरा ने दो गोरे चिट्टे लड़कों की तरफ इशारा करके उससे पूछा। यूनी में भी अक्सर पूछती रहती थी। दोनों अंग्रेज हैं। इस बार उसे यकीन था उसका जवाब ठीक होगा। वीरा ने कहका लगाया, दोनों अंग्रेज कैसे हुए? क्योंकि दोनों गोरे हैं। और वो एक और दर्जे का ढूंढ रही थी कि वीरा का एक और बुलंद मांग कहका जगमगा उठा कि गुजरगाह की शान बना, एक अमेरिकी और दूसरा आयरिश। तुम फिर से गलत हो। तुम्हें कैसे पता चला? पता चल जाता है। तुम्हें इतना तो मालूम है ना कि आयरिश किसे कहते हैं? इमराह ने हाँ में सर हिलाया, जबकि वो नहीं जानती थी। उसे क्या बताती कि इसे यहाँ सब गोरे रंग वालों को अंग्रेज ही जाना और कहा जाता है। अब भले से वो कनाडा का हो या फ्रांस का या मैनचेस्टर में वो रहकर उसे अंदाज़ा तो हो चुका था कि वहाँ कौमियत का हौसला देकर काफ़ी बात की जाती है, बल्कि बात ही कौमियत से शुरू की जाती है। फ़लाँ अमेरिकी का कॉफ़ी कैफ़े, फ़लाँ अरबी का शो, फ़लाँ जर्मन सर का लेक्चर उसे कोफत होती थी जब इस शख्स का नाम बाद में लिया जाता और कौमियत पहले। वीरा अपने क्लास फेलोज का जिक्र करती तो उनकी कौमियत से शुरू करती, और जब उसे वीरा को कोई बात बतानी होती तो वो कहती फलां जिसके बाल लंबे हैं, पतला सा लंबा सा जिसकी गहरी सबज आंखें हैं। मुश्किल सा नाम है, तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का है, बालों की पोनी बनाता है। तो सारी मालूमात वीरा उसकी एक अच्छी उस्ताद थी और वो खुद भी वीरा से बहुत मुतासर रहती थी। चलते चलते वीरा एक कैफ़े के सामने रुकी। एक बड़े से कार्टून के पास खड़ी हो गई जो जुबान बाहर निकाल कर आने जाने वालों को चिढ़ा रहा था। उस जिन जैसी ही वीरा थी, जुबान निकाल कर उसके साथ खड़ी हो गई। क्लिक मी इमराह, मेरी तस्वीर बनाओ। इमराह बुरी तरह हंसते उसकी तस्वीरें बना दी। वीरा ने ठीक वैसे ही इमराह को खड़े होने के लिए कहा। इमराह ने खुद को बचाना चाहा, लेकिन उसने उस जिन के साथ खड़ा कर दिया तो जुबान बाहर निकालने को कहा। वहाँ उन्हें ये सब करते कोई नहीं देख रहा था, लेकिन इमराह को लगता था सब उसे ही देख रहे हैं। सब अपने आप में मगन थे। देखने का रवाज वहाँ नहीं था। ज्यादा से ज्यादा एक सरसरी नजर डाल लेते। उस जिन के पास खड़े होकर वीरा ने 2 उंगलियों को जुबान के नीचे देकर सीटी बजाई, सर से ऊपर हाथ ले जाकर ताली बजाई और बाएं हाथ को होंठों के किनारे रखकर ऊ की बनमास जैसी आवाजें बड़े शौक और खालिस जंगली अंदाज से निकाली। ये क्या कर रही हो? ये प्रिंट वर्क में आने का ऐलान है। मैं यहाँ ऐसे ही एंट्री देती हूँ। वो ऐसी एंट्री दे सकती थी, वो वीरा थी ना। तुम जंगली हो, कभी किसी रूसी को जंगली ना कहना। हम बूंद बूंद जिंदगी से जमे जिंदा दिल के क्रिस्टल हैं। जिंदगी का सूरज हम में से होकर रंगों को चमका देता है। हम मौत सी बर्फ में दफन सरसब्ज चरागाहों के कहके लगाते हैं। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम जंगली कैसे हुए? हम बूंद बूंद पानी से जमे जिंदा दिली के क्रिस्टल हैं।
इमराहा ने ज़ेरे लब इस कुव्वत बख्श जुमले को दोहराया और खुलकर मुस्कुराने लगी। वीरा की बातें ऐसी ही होती थी, उनमें से एहसास कमतरी झलकती थी, ना ही मायूसी। वो कुछ इस अंदाज से चलती फिरती, मुस्कुराती और बातें करती जैसे दुनिया उसके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी है, और अगर ये दुनिया उसे खुशामदीद कहने पर आमादा नहीं है तो बहरहाल उसकी परवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि वो अपनी अलग दुनिया तख्लीक करने का वसफ रखती थी। प्रिंट वर्क का एक राउंड लेने के बाद उसे हार्ट रॉक कैफे ले आई, जिसकी बैरूनी दीवार के बाहर एक बड़ा सा गिटार लटका सुर्ख सफेद रोशनियों से जगमगा रहा था। ये कैफे है। वीरा घबरा गई। हाँ, कैफे भी है, अंदर और भी बहुत कुछ है। तुम पहले कभी हार्ट रॉक नहीं गई? मैं इसका नाम पहली बार सुन रही हूँ। तुम्हारे मुल्क में नहीं है? ये क्या हर मुल्क में है? दुनिया का कौन सा बदनसीब होगा जो हार्ट रॉक से महरूम होगा? है क्या इसमें? अंदर आ जाओ वीरा, इसे अपने साथ ले गई। दीवारों पर जा बजा गिटार लटक रहे थे। कुछ पुराने फैशन के क्लूब बॉय बेस्ट भी दीवारों पर आवेजा थे। कैफे की सजावट देखने के लायक थी। अंदर जाते ही उसे कई जाने पहचाने यूनिवर्सिटी के चेहरे नजर आए। फिर उसे अपनी यूनि के स्टूडेंट्स का हिजूम नजर आया। उन सारे कैफेज और बार्स में स्टूडेंट्स की रायती कीमत पर ड्रिंक्स और खाने मिलते थे। वीरा उसे बार्स, सैंडविच, उन सारे कैफेज और बार्स में स्टूडेंट्स की रायती कीमत पर ड्रिंक्स और खाने मिलते थे। वीरा उसे बार्स स्टैंड के पास बैठाकर जरूरी काम का कहकर चली गई। जाते जाते वो उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऑर्डर दे गई थी। बार स्टैंड उसे ड्रिंक दी और कॉकटेल बनाने लगा। उसके दोनों बाजुओं पर कोहनियों से ऊपर तक टैटू खदे थे। दाएं बाजू पर भी झाड़ियों में से एक खूनख्वार भेड़िया दांत निकाले, आंख झुकाए, शिकार पर जिस्त लगाने की तैयारी कर रहा था, और बाएं बाजू पर वही भेड़िया अपने शिकार की गर्दन दबोचे गिरा रहा था। उसका शिकार एक इंसानी खोपड़ी था। इमराहा ने कराहत से अपनी नजरें फेर ली। कॉकटेल बनाते उसने तिरछी नजरों से इमराहा को देखा और ज़ेरे लब हंसने लगा। तुम्हें ये पसंद आया? उसने भेड़िए की तरफ इशारा किया। इमराहा ने मुंह बनाया, बल्कि नहीं, जहर लग रहा है। इतनी साफ गोई कि शायद उसे तवक्का नहीं थी। उसने खुद को काम में मसरूफ करना चाहा और ज़ेरे लब बुरबुराने लगा। ठीक 10 मिनट बाद डीजे ने फुल वॉल्यूम में डिस्क प्ले किया। पहले सिर्फ हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। बाहर शाम गहरी हो रही थी। हार्ट रॉक के कोने खुदरों में हाओ वाओ करता हिजूम डीजे के आगे जमा होने लगा। डिस्को लाइट तेजी से हरकत करने लगी। इमराहा घबरा गई। उसने उसके पास देखा। वो अंदाजा कर सकती थी कि असल में ये कौन सी जगह है। वो सीढ़ियां उतरकर 2-3 राहदारियां पार करके यहाँ तक आई थी। वो जल्दी से उठी और अपनी दानिस्त में राहदारियां पार करके सीढ़ियां उतरकर बार से बाहर आ गई। लेकिन वो दरअसल हार्ट रॉक के ही एक दूसरे हिस्से में आ निकली थी, जहां जुआ खेला जा रहा था और जहां जुए की बड़ी बड़ी मशीनें रखी थी। और वो हवास बाख्ता सी हो गई। दादा को अगर ये सब मालूम हो जाए तो उसे लेने खुद मैनचेस्टर आ जाए। वो वापस उस जगह आई जहां वीरा उसे छोड़ कर गई थी, लेकिन वीरा अभी तक नहीं आई थी। मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? बार टेंडर ने बहुत शराफत से मुस्कुराकर इमराहा से पूछा। मुझे बाहर जाना है। किस तरफ से जाना है? फ्रंट डोर तो बंद हो चुका है, तुम्हें बैक डोर से जाना होगा। बैक डोर कहाँ है? उसे क्या मालूम था कि इन हार्ट रॉक में क्या असूलो ज़वाबत थे आने जाने के और कहाँ उनके बैक डोर्स थे। हाथों को तेजी से नीचा करके उसने उसे बताया कि पिछला दरवाज़ा किस तरफ है। इमराहा को उन भेड़िए खदे हाथों की हरकत की कतन समझ नहीं आई। डीजे साउंड बदल चुका था। उसने जानवरों के चिंगारने की आवाज़ों को मॉडर्न हिप हॉप म्यूजिक के साथ मिक्स करके फुल वॉल्यूम कर दिया था। इमराहा के रंग तेजी से बदलने लगे। तेजी से कॉकटेल बनाते वी लव टू सीन की शर्ट पहने उसने इमराहा की तरफ देखा। आओ मेरे साथ, उसने खुद से ही कहा। इमराहा तो उसे पहली नजर से ही नापसंद कर चुकी थी, लेकिन उसके जाने से खुद को रोक ना सकी। डीजे कामयाबी से वो म्यूजिक बजा रहा था जो सबको जानवरों की चिंगारने पर मजबूर कर रहा था। वो आगे चलने लगा। वो उसके साथ थोड़ा फासला रखकर पीछे चलने लगी। 3-4 राहदारियां चलकर वो 3 बार सीढ़ियां उतरकर उसने एक दरवाजा खोल कर कहा, ये है बैक डोर, तुम यहाँ से जा सकती हो।
शुक्रिया। वो तेजी से आगे बढ़ी और दरवाजे के पार हो गई। लेकिन वो तो बाहर का रास्ता ही ना था। फौरी शौक के जेरे असर आने से पहले उसने देखा कि वो एक छोटा सा कम रोशनी वाला कमरा है जो मुख्तलिफ चीजों से अटा पड़ा है। उसके पैरों के पास बहुत सी खाली बोतलें पड़ी थी और वहां 2 कदम खड़े होने के अलावा कोई जगह नहीं थी। बदबू के भभूके थे जो दम घोट रहे थे। दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ, फिर फौरी लॉक हुआ और चलाकर उसने जो उसे बाहर का रास्ता दिखाने लाया था कहा, अब यहाँ कई भेड़िए आएंगे तुम्हारी गर्दन दबोचने। दूर ऊपर डीजे ने इंसानी खुद साख्ता चीखों के साथ एक दूसरे म्यूजिक को मिक्स करके चलाया फुल वॉल्यूम से। हार्ट रॉक कैफे का क्लब बार अपने अरूज पर आ गया। इमराहा की चीख इस अरूज में दब गई। अगर कोई इस वक्त उसकी शक्ल देख लेता तो जान जाता कि मौत से भी ज्यादा दहशतनाक अगर कोई चीज थी तो इस वक्त उसकी शक्ल पर छाए खौफ के अलावा कोई और नहीं थी। अंधेरे का रेला उसकी आंखों में घुसता चला गया। उसे नजर आना बंद हो गया। वो जहां थी तहां रह गई। जिस खोपड़ी को बारटेंडर के बाजू पर बने भेड़िए ने मुंह में दबोच रखा था वो वही खोपड़ी बन गई। शिकार की गई, शिकार हो गई। उसने सर को झटका दिया। उसे कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा था। उसने मुसलसल 2-3 झटके दिए। उसे धुंधला धुंधला नजर आने लगा। सर को झटके देने से उसके सर में ठेसें सी उठी और वो दीवार का सहारा लेकर बैठने पर लड़खड़ाती हुई बोतलों के ढेर पर बैठ गई। ठंड में भी वो पसीने से भीग चुकी थी। इतनी सी देर में ही उसका हाथ क्रॉस बैग पर लगा। उसका बैग उसके साथ था। उसके पास फोन था। उसने कांपते हाथों से फोन निकाला और वो वीरा को फोन करने लगी। बेल जा रही थी, बेल जाती रही, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने मैसेज लिखने की कोशिश की लेकिन उसकी उंगलियों की कपकपाहट ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो साधना को फोन नहीं करना चाहती थी, पुलिस को तो हरगिज नहीं। इसके अलावा उसके पास सिर्फ चंद दूसरे लोगों के नंबर्स थे। वो अपनी फोन बुक चेक करने लगी और आलियान पर आकर रुक गई। वो एक क्लब के किसी तय खाने में बंद कर दी गई थी और खौफ से कांप रही थी। फोन कॉल के बटन को पुश करने के लिए उसने अपने जिस्म की थरथराहट को काबू किया। हेलो आलियान, मैं इमराहा। मुझे किसी ने यहाँ बंद कर दिया है। अपने रोने पर काबू पाते उसने बहुत देर लगाकर जुमला मुकम्मल किया। ठीक है, तुम अभी वहीं रहो बेबी। कोने में खाली बोतलों के क्रैट्स के पीछे वुडका रखी है, तुम उसे ले सकती हो। पुलिस को फोन करने की हमाकत हरगिज न करना, वरना तुम्हारी डेड बॉडी भी उनके पास आएगी। इमराहा के हाथ से फोन गिर गया और उसकी बैटरी निकलकर दूर जा गिरी। आलियान के फोन पर बारीक आसाब निचोड़ देने का खौफ रहने उसके वजूद का अहाता कि उसके पास एक ही हल था कि वो पुलिस को फोन करे। आलियान, वीरा और वो लड़का कौन था, इस सवाल के बारे में सोचते ही उसकी जान पैरों की उंगलियों में आने लगती थी। वीरा उसे बहाने से यहाँ लाई थी, पर क्यों? उसे ऐसे बंद करने के लिए वो उसके साथ क्या करना चाहते थे? और आलियान, ये सब क्या था? कपकपाते हाथों से उसने बैटरी को फोन में डाला और फोन हाथ में लेकर बैठ गई। अगर पुलिस आएगी, इस क्लब में से उसे बरामद करेगी तो ये खबर अखबारात तक भी जाएगी। यूनिवर्सिटी के एक एक स्टूडेंट को मालूम हो जाएगा। वो तमाशा बन जाएगी। फोन को हाथ में पकड़कर घुटनों को जोड़कर वो रोने लगी। मैनचेस्टर में पहली बार पूरी शिद्दत से रोती रही। उसके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं था कि वो पुलिस को फोन करे और बात का सोचकर वो रो रही थी। ऐसे प्रदेश में किसी क्लब में बंद किए जाने पर अपनी कम अकली पर इतनी खुद पर प्रदेश में पड़ने वाली अब तक बाहर से अंदर आने के रास्ते ही ठीक से याद नहीं कर सकी। घर से बाहर निकलने के लिए 2 जूते ही नहीं जरूरत होते जो पहनकर बाहर चला जाता है। वो होशो मंदी भी जरूरी होती है जो गिरने ना दे, चोट तो हरगिज ना लगने दे। इस स्टोर में फैली बदबू उसे पागल किए दे रही थी। डीजे के म्यूजिक प्ले करने पर वो इतना घबरा गई, उसने इस घबराहट पर काबू क्यों ना पाया। ऐसा भी होता है क्या प्रदेश में तालीम की गर्द से आबाद लड़की ऐसे घबराई और बौखलाई फिरे? ऐ खुदा मेरी मदद कर, किसी को भेज दे मेरे लिए। वो दुआ कर रही थी, साथ साथ वीरा को फोन कर रही थी कि एकदम से दरवाजा खुला और सामने खुदा की भेजी मदद खड़ी थी। आलियान। इमराहा, उसने अभी ये कहा था। वो धक्का मारकर उसे पीछे हटाती तेजी से भागकर ऊपर आई।
काउंटर के पीछे खड़े मुस्कुराते उस मनहूस इंसान को उसने तेजी से जाते हुए देखा। वो लोगों के साथ टकराती टकराती गिरती पड़ती हार्ड रॉक से बाहर निकली। इमराहा, बात सुनो। आलियान तेजी से उसके पीछे भागता हुआ आ रहा था, उसे आवाजें दे रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। क्यों रुकती? कहाँ जा रही हो? मेरी बात सुनो। उसने एकदम लपक कर उसका बाजू थाम लिया। इमराहा पर जैसे किसी ने जलता हुआ तेल अंडेल दिया। उसने अपने बाजू को एक झटके से उससे छुड़वा कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। दी प्रिंट वर्क की मसरूफ तरीन राह गुजर पर खड़े होकर कम से कम 50 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को गवाह बनाकर तुम तीनों ने मिलकर मुझसे जो घटिया मजाक किया है, ये इसलिए। उसने थप्पड़ की तरफ इशारा किया और उसे घूरती हुई तेजी से आगे बढ़ गई। सड़क पर आकर अपने लिए टैक्सी देखने लगी। गुस्से से उसका खून खोल रहा था, दुख से उसकी आंखें धुआं धुआं हो रही थी। वीरा आलियान की क्लास फेलो थी, तीसरा भी उनका कोई क्लास फेलो होगा। उसे मालूम नहीं था ये सब क्यों किया गया था। उसे ये मालूम था कि उसके साथ ये सब कर दिया गया था। बस उसने टैक्सी रोकी और उसमें बैठने लगी थी कि आलियान ने अपने पैर को टेक के दरवाजे पर फंसाया। मेरी बात सुनकर जाओ इमराहा, उसने तहम्मुल से कहा। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। इमराहा ने मुंह फेर लिया और सख्ती से उसका पैर परे करके दरवाजे को बंद कर दिया और ड्राइवर को चलने के लिए कहा। वो घर पहुंची तो आलियान पहले से ही दरवाजे पर मौजूद था। मेरी बात सुन लो इमराहा, शोर मत करना, मामा सुन लेंगे तो उन्हें दुख होगा। हाँ, दुख होगा उन्हें कि उनके बेटे ने क्या शानदार हरकत की है। उन्हें दुख होगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। सारी दुनिया भी गवाह बनकर आ जाएगी तो वो फिर भी नहीं मानेगी कि मैंने कुछ बुरा किया है। अच्छा, धूल झोंक रहे हो? फिर उनकी आंखों में उसे पड़े धकेलती वो अंदर जाने लगी। वो उनमें से किसी की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। इंसान जिंदगी में उस वक्त ज्यादा तकलीफ उठाता है जब वो हकीकत जाने बगैर खुद को अंधा कर लेता है और अपने इस अंधेपन का इलाज नहीं करवाना चाहता। आलियान अपने मजबूत चौड़े जस्से से उसका रास्ता रोके खड़ा था। उसका अंदाज ऐसा था कि वो एक लंबे अरसे तक ऐसे खड़ा रह सकता है। क्या कहना चाहते हो मुझसे अब? वो चलाई। वो कारल था। तुम्हें कैसे बताऊं, वो मेरा दोस्त भी है और दुश्मन भी। वो जानता है तुम मेरी दोस्त भी हो। स्टूडेंट पार्टी में वो भी था। मुझे नहीं मालूम कि उसने तुम्हें बंद क्यों किया। वो किचन में मेरे पास आया और मुझसे फोन मांगा। 2 मिनट बाद उसने मुझे बताया कि उसने तुम्हें स्टोर में लॉक किया है। उससे तफसील जाने बगैर मैं जल्दी से तुम्हारे पास आया क्योंकि मैं जानता था कि तुम जल्दी परेशान हो जाती हो। इस सबब में मेरा क्या कसूर है इमराहा? इमराहा के आंसू टप टप गिरने लगे। तुम लोग किस कदर जालिम हो, किस तरह की शरारतें करते हो, कैसे लम्हों में मजाक बनाकर रख देते हो, जान निकाल देते हो। ये सब ऐसे करते जरा नहीं झिझकते। मैं जालिम नहीं हूं इमराहा, तुम मुझे एक और थप्पड़ मार सकती हो, लेकिन तुम ऐसे रो नहीं। मैं कारल से निमट लूंगा। इमराहा ने बैग से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और हथेली की पुष्ट से आंखें साफ करती अंदर चली गई। आलियान बाहर ही खड़ा रह गया। जब ठीक 2 घंटे बाद जब इमराहा के कमरे की बत्ती गुल हुई तो वो चला गया। वो कारल के पास जा रहा था उसे एक और घूंसा मारने। हार्ड रॉक कैफे फ्लोर के डांसिंग फ्लोर पर जब म्यूजिक अरूज पर था और सब डांस करते करते पागल हो रहे थे, उस वक्त जाकर उसने कारल नामी लड़के को घूंसा मारा था। वो लड़खड़ा कर गिरा और हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने मेरे डैडीज को बुरा कहा था। कारल ने अपने टैटू की तरफ इशारा किया। उससे दूर रहना कारल। आलियान की आंखें सुर्ख हो गई। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है वो मुस्कुरा रहा था। मैं सब यही खत्म करता हूँ। बस बहुत हुआ। क्या खत्म करते हो? जो कुछ भी इतने सालों से हमारे दरमियान चलता आ रहा है। हमें ये बचकाना खेल अब बंद कर देना चाहिए। एकदम से तुम्हारा मूड कैसे बदल गया उस लड़की के लिए? वो मेरी दोस्त है। दोस्तें तो तुम्हारी और भी बहुत हैं। ये कौन सी दोस्त है जिसके लिए तुमने मुझे घूंसा मारा है? वो मशरिक से आई है। उसे हमारे यहाँ के माहौल की आदत नहीं है। वो डर जाती है। ओह वाह, स्टूडेंट पार्टी में उसे डरते मैंने भी देखा था। कमाल का डरती है वो। बहुत मजा आता है उसे डराने में। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो उसकी शक्ल देखने लायक थी। वैसे तुम कब से मशरिक को समझने लगे हो? उसे वही छोड़कर आलियान वापस किचन में गया। वो किचन का हेड था। इमराहा के पीछे घर तक जाते हुए उसने मैनेजर को फोन करके बता दिया था वो एक जरूरी काम से जा रहा है, 1-2 घंटे में वापस आ जाएगा।
کارل بھی اسی سینٹر میں تھا جس میں آلیان نے پرورش پائی تھی۔ وہ اچھے دوست بھی تھے اور اچھے دشمن بھی۔ ابتدا کارل نے کی تھی۔ اس نے سینٹر میں موجود ایک دوسرے لڑکے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے اور منہ پر کپڑا لپیٹ دیا تھا۔ لڑکا بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب اس سلسلے میں تفتیش کی گئی تو کارل نے معصومیت سے ہاتھ آلیان کی طرف اٹھا کر کہا، میں نے خود اسے یہ کرتے دیکھا ہے۔ آلیان اس کا منہ دیکھتا رہ گیا اور سزا کے طور پر اسے پورا 1 مہینہ ایک وقت کا کھانا ملتا رہا۔ پھر آلیان نے کارل کے ذمہ جو لانڈری ہوا کرتی تھی اس میں کافی کا گارا محلول، سیاہی، ببل، چوئنگ گم ڈال دی تھی۔ مشین سے نکلنے کے بعد کپڑے ناقابل استعمال کی عملی شکل اختیار کر چکے تھے۔ اسے مزید کچھ بھی کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ سب جانتے تھے کارل ہر وقت ببل کھایا کرتا ہے۔ آلیان نے یہ بدلہ ٹھیک 8 ماہ بعد لیا تھا۔ وہ کارل کے پاس جسے پورا 1 ہفتہ بنا بستر کے زمین پر سونے کی سزا ملی تھی گیا اور اسے کہا، حساب برابر ہو گیا نا کارل؟ کارل نے پوری بتیسی نکال کر دکھائی۔ بالکل، اور یہ حساب برابر ہو گیا نا؟ وہ ہر 6-7 مہینے بعد ایک دوسرے کو کہتے، ایک دوسرے کی طاق میں رہتے۔ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی، یہ سلسلہ ٹوٹ کر چلتا رہا۔ آلیان نے اس کا بریک اپ کروایا تھا ایش سے مختلف ملاقاتوں کے دوران وہ اسے بتاتا رہتا کہ کارل کبھی کبھی اتنا جنونی ہو جاتا ہے کہ اپنے کپڑے تک پھاڑ دیتا ہے، صابن کھانے لگتا ہے، شیمپو پینے لگتا ہے، اپنے سارے جوتے بیڈ پر بچھا لیتا ہے اور ان پر سوتا ہے، اور تو اور پھندا ڈال کر کم سے کم 5 منٹ تک لٹکا رہتا ہے۔ کہتا ہے موت کا مزہ لے رہا ہوں۔ ایش کی شکل دیکھنے لائق ہوتی۔ وہ جانتی تھی آلیان اور کارل ایک جگہ رہے ہیں، تو اب آلیان سے بہتر کارل کو اور کون جان سکتا ہے بھلا؟ وہ کیسا جنونی ہے، یہ آلیان سے زیادہ کون جان سکتا تھا؟ دونوں میں بریک اپ ہو گیا۔ وہ مجھے واقعی اچھی لگتی تھی، کارل نے اس کے روم میں آ کر صرف اتنا کہا۔ وہ خوفناک حد تک سنجیدہ تھا۔ تمہیں سارا بھی اچھی لگتی تھی؟ آلیان نے کندھے اچکائے۔ ویسے کیا تم چاہتے ہو کہ میں ایش کے پاس جاؤں اور اس سے یہ کہوں کہ جو کچھ میں نے کہا وہ سب جھوٹ تھا؟ ایک اچھا کھلاڑی کبھی ایسی فاش غلطی نہیں کرے گا۔ وہ کبھی منت اور درخواست نہیں کرے گا۔ وہ صرف توجہ سے اپنا کھیل کھیلے گا۔ اگر تم میری پروجیکٹ فائل مجھے واپس کر دو تو میں ایش کے پاس جا سکتا ہوں۔ میں نے کہا نا، ایک اچھا کھلاڑی کبھی منت نہیں کرتا۔ وہ کمرے کی چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ 2 ہفتے پہلے وہ اس کی ایک اہم فائل لے اڑا تھا جو اس نے کئی مہینوں کی انتہاک محنت کے بعد تیار کی تھی۔ بزنس مشاورت کو لے کر ایک چھوٹی سی کتاب تھی جس کے لیے اس نے پبلشر سے بات بھی کر لی تھی۔ یہ کام اس نے بہت چھپا کر کیا تھا، لیکن کارل اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس نے پہلے کمرے سے اس کی فائل غائب کی، پھر لیپ ٹاپ کا پاس ورڈ توڑ کر کمپیوٹر کو کرپٹ کیا اور اس میں وائرس چھوڑ دیا۔ لیپ ٹاپ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اس کی مردہ فائلوں کو ریکور نہ کر پایا۔ ایک بڑا کھلاڑی ہونے کی حیثیت سے آلیان نے اس کی کافی منت کی وہ اسے اس کی فائل دے دے، لیکن اس نے نہیں دی۔ بدلے میں اسے ایش کو بھڑکانا پڑا۔ وہ جانتا تھا کارل ایش کو بہت پسند کرتا ہے اور اس کے ساتھ فیوچر پلاننگ کر رہا ہے۔ اس نے ایش کے دماغ سے لے کر کافی کچھ ڈال دیا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر اس نے یہ کیا کہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر ایش کو دینا شروع کر دیا۔ ایک جنونی کے مقابلے میں اسے آلیان جیسا لائق فائق لڑکا زیادہ اچھا لگا۔ ایک ہی ہفتے میں 10-15 بار لڑ کر دونوں الگ ہو گئے، اور ظاہر ہے کارل جانتا تھا یہ سب کیوں ہوا، کس نے کیا۔ کارل کمرے سے چلا گیا اور ٹھیک 5 منٹ بعد واپس آیا اور کہا، ذرا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھو۔ آلیان نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی سمت دیکھا۔ ود ورتھ پارک اسٹوڈنٹ کی رہائش گاہ کے گراؤنڈ میں کوئی چیز جل رہی تھی۔ آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس میں سے وہ آلیان کی مستقبل قریب میں آنے والی کتاب تھی جو اب آگ کے حوالے تھی۔ آلیان نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ پہلے میں اس مسودے کو اپنے نام سے چھپوانے کا سوچ رہا تھا، لیکن ابھی کھڑے کھڑے میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ چند ہزار پاؤنڈز کا نقصان کچھ زیادہ تو نہیں، کارل کہہ کر چلا گیا۔ کارل ہمیشہ اسے بڑی چوٹ دے کر جاتا تھا، اس کا بڑا نقصان کرتا تھا۔ دونوں ضدی تھے، دونوں ہی باز نہیں آ رہے تھے، لیکن اب آلیان سب ختم کر
आया था। वो अपने मुंह से कह आया था कि उसे अब ये खेल और नहीं खेलना। माजी में ये सब करते उसने कभी आगे के बारे में नहीं सोचा था। कारल का ब्रेकअप करवाते भी नहीं, लेकिन अब वो खौफजदा हो गया था। कैसे लम्हों में उसने इमराहा को लॉक कर दिया था। उसे कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन क्या मालूम किसी छोटे नुकसान, किसी मामूली शरारत में ही बड़ा नुकसान छुपा हो। कारल छुपकर वार किया करता था। बज़ाहिर ऐसे जाहिर करता था जैसे सब ठीक है और वो पिछली चोट भूल चुका है, लेकिन फिर नई चोट देकर वो ऐसे मुस्कुराता जैसे कह रहा हो जिंदगी का असल मज़ा इसी खेल में है, और जिस चीज़ में मज़ा हो उसे छोड़ने को किसका दिल चाहता है।